हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाहता ये था कि अपना प्रोग्राम जो है, ये जो आज नगमा बना ISPR ने रिलीज़ किया, उससे शुरू करूं। आपने सुना, सारा दिन भी आप सुनते रहे होंगे, लेकिन मैं डेडिकेट करना चाहता था एक मरतबा फिर इस मुल्क को, पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को और इस मुल्क के लोगों को। एक और चीज़ जो आपके सामने आ रही है सोशल मीडिया पे, और उसमें कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मैं उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहता हूँ, और जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं, ऐसे भाई हैं, ऐसी बहनें हैं जो कि आज उनके लिए एक त्यौहार है और एक बहुत अच्छा त्यौहार है और क्रिसमस का त्यौहार है, और उनको मैं विश करना चाहता हूँ। और जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट की जा रही हैं सोशल मीडिया पे, उनको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और मैं अपनी तरफ से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको मैरी क्रिसमस भी यहाँ पे विश करना चाहता हूँ। लेकिन जो कन्फ्यूजन्स है उनको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। एक डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब का एक मैसेज है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ अबाउट क्रिसमस जी। वो ज़रा गौर से सुनिएगा और उसमें मेरे ख्याल में जो भी कन्फ्यूजन होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। ज़रा सुनाइए जी। Bismillahirrahmanirrahim. Is it wrong to wish Happy Christmas, Merry Christmas to our Christian neighbors, friends? There are people who claim that if you will do it, it would be as if you are acknowledging that Jesus Christ was the Son of God. The fact of the matter is that when we wish our neighbors, our friends, our colleagues who belong to the Christian community Happy Christmas, we are just congratulating them on their occasion of festivity. We are giving them our good wishes, like they do to us when they wish us well in Eid or other such occasions. When a Christian wishes a Muslim Happy Eid, Eid Mubarak, he or she thereby does not become a Muslim. Likewise, when we wish others well, we do not become Christians or ascribe to their views and beliefs. However, what we do certainly do is that we become good neighbors, good friends. We have a good communication with them. They feel comfortable with us and we feel comfortable with them. Most certainly we have disagreements with others, and we do not share some of their views, and indeed it's likewise in their case as well. But that doesn't really mean that we should stop communicating with each other, stop sharing good wishes on occasions which are important for others. There are occasions and opportunities which we can avail to communicate our point of view, to present our religious understanding to others in a polite, intelligent manner. And for that purpose, we need to have good, cordial relationships with others. Making statements like wishing others well on their occasions of festivities in no way implies that we are acknowledging that each and everything that you believe in or you stand for is correct. It's just a way of expressing ourselves. The Almighty wants us to be good to our neighbors. He wants us to be good to fellow human beings. And therefore, He wants us to be decent members of our society. To claim that wishing Happy Christmas is like claiming that God has a son is actually describing the expression of wishing in a manner which is out of proportions. It's an exaggeration. It makes no sense. Happy Christmas or Merry Christmas in no way means that we are saying that Jesus was the Son of God. It's simply an expression wherein we are wishing somebody else to have a good day and a good time in his or her occasion of festivities. मेरे ख्याल में डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब ने बड़े एलेबरेट कर दिया सारी चीज़ को और बता दिया कि मैरी क्रिसमस कहना या विश करना क्रिसमस,
is not a sin, and we should wish our Christian community and those people around the world who are like celebrating Christmas today, we should wish them a Merry Christmas. उससे आगे थोड़ा सा चलता हूँ जी, मैं एक क्लैरिफिकेशन करनी बहुत ज़रूरी थी और एक स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब से कहलवाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसको अपने प्रोग्राम में मैंने शामिल किया। थोड़ा सा चलते हैं जी हमीदुद्दीन सियालवी साहब की तरफ, जो कि बहुत इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है एंड स्पेशली इन पंजाब, और वहाँ पे कहा यह जा रहा है जनाब के इस्तीफ़े उन्होंने दे दिए सियालवी साहब ने, और उनके जो उनको फॉलोअर्स जो हैं उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हुए हैं। उनमें एक तो है ग़ुलाम बीबी भरवाना साहिबा, निसार जट साहब जी, और उसके अलावा MPs भी हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डालना चाहूँगा, आपको कोई अंदर की खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अंदर की खबर आपको बता दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो कहते हैं बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, और इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ साहब, इन्होंने एक पैगाम भेजा और मुस्लिम लीग नून को एक पैगाम भेजा, मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को एक पैगाम भेजा जो मैं बता रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं कोट एंड कोट आपके सामने रख रहा हूँ, उन्होंने कहा जी हम मजबूर थे इसलिए इस्तीफ़े दिए। ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत को पैगाम पहुँचाया गया ग़ुलाम बीबी भरवाना और निसार जट की तरफ से। और आगे वो कहते हैं जनाब ग़ुलाम बीबी भरवाना जो है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही पुरानी बात है, कुछ इतनी लंबी चौड़ी पुरानी बात भी नहीं है ये। ग़ुलाम बीबी भरवाना साहिबा ने पंजाब हुकूमत के दिल में, पंजाब हुकूमत के क़यादत उनको बहुत इज्जत की निगाह से देखती थी और देखती है भी, अभी भी देखती है। तो आंखों की तारा होती थी बीबी और ग़ुलाम बीबी भरवाना साहिबा, और उनकी बड़ी इज्जत की जाती थी। और ये कुछ हफ्तों पुरानी ही बात है, कोई लंबा चौड़ा इसमें अरसा भी नहीं गुजरा। ग़ुलाम बीबी भरवाना ने कुछ अरसा पहले, यानी कि कुछ हफ्ते कह लें आप, ऐसे बेहतर होगा, हुकूमत पंजाब से 1.5 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स अप्रूव करवाए, और 1.5 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स उन्होंने अप्रूव कराए ग़ुलाम बीबी भरवाना साहिबा ने। और उसको अप्रूव करने का मतलब ये होता है कि जनाब अगर किसी इलाके में पंजाब गवर्नमेंट या मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अगर इतने फंड्स दे रहे हैं, 1.5 अरब रुपए के फंड्स दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ग़ुलाम बीबी भरवाना साहिबा जो है उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जा रही है। और हुकूमत पंजाब या चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ चाहते ये थे कि जनाब उस इलाके में तरक्की हो, और इतनी तरक्की हो कि उनको प्रॉब्लम ना हो उन इलाके के लोगों को। लेकिन ग़ुलाम बीबी भरवाना साहिबा ने तरजीह दी सियाल शरीफ साहब के बदले, उन्होंने सियाल शरीफ साहब को तरजीह दी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बदले, और उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ कि कुछ आवाज़ें ऐसी ज़रूर आ रही हैं कि जो इस्तीफ़े दिए गए हैं स्पीकर के पास पड़े हुए हैं वो अप्रूव होते हैं या नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। और इसमें क्या कोशिश की जा रही है ये आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा, क्योंकि इस्तीफ़े तो पहुँच गए हैं स्पीकर नेशनल असम्बली के पास, जट साहब का भी और बीबी का भी, बीबी भरवाना साहिबा का भी, और लेकिन वहाँ पे अप्रूव होते हैं या नहीं होते हैं, या वहाँ पे भी कोई कोशिश की जाएगी कि जनाब इस्तीफ़े मंजूरी ना करो साढ़े, और ठीक है सी जड़े मजबूरी दे तहत इस्तीफ़े देने सन हमीदुद्दीन सियालवी साहब को दे दिए हमने, ठीक है, लेकिन अब अप्रूव करें या ना करें उसमें भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दूसरा ये कि ग़ुलाम बीबी भरवाना नून लीग पंजाब की वाहिद रुकन थी, MNA है वो, और वाहिद MNA है जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब से 1 माह में, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास टाइम नहीं होता, वो सुबह उठते हैं मेरे ख्याल में 5 बजे, और उसके बाद वो चल वो मेरे ख्याल में कोई अगर देखा जाए तो 19-20 घंटे ज़रूर काम करते हैं। सो उनसे मुलाकात करना एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि ही इज़ लाइक टू मच कमिटेड एंड टू मच इनटू थिंग्स। लेकिन 1 महीने में ग़ुलाम बीबी भरवाना साहिबा
उनसे 5 मरतबा मिल चुकी हैं। सो ये आप इम्पोर्टेंट हल्का समझ लें मुस्लिम लीग नून के लिए, वो कितनी इम्पोर्टेंट समझते थे अपनी MNA को, भरवाना साहिबा को, और उन्होंने 5 मरतबा उनसे 1 महीने में मुलाकात की और 1.5 अरब रुपया, मैंने जैसे आपको पहले बोला, उन्होंने फ़ंड भी अपने रिलीज़ करवाए और कुछ ही दिन पहले करवाए। और उसके बाद आपके सामने ये सारी स्टोरी, उन्होंने इस्तीफ़े भी दे दिए और हमीदुद्दीन सियालवी साहब को उन्होंने इस्तीफ़ा अपना पेश कर दिया। लेकिन एनीवे एक टिपिकल सी बात है, लेकिन इट गोज़ विदाउट सेइंग, लेकिन देन अगेन आई मस्ट मेंशन इट ओवर हियर कि गुलाम बीबी भरवाना की मर्जी के बगैर SHO, पटवारी, ज़रूरी तरक्याती बैंक के मैनेजर्स नहीं लग सकते थे उनके इलाके में। उनकी मर्जी होती थी तो SHO भी लगता था, पटवारी भी लगता था, और जनाब तरक्याती बैंक के मैनेजर भी उनकी मर्जी के साथ लगते थे, उनकी मर्जी के बगैर नहीं लग सकते थे। निसार जट साहब के बारे में मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जट साहब को कुछ लोगों ने कुछ माह पहले बताया था जी कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस हैं, उन इलेक्शंस में शायद जट साहब आपको मुस्लिम लीग नून जो है वो टिकट ना दे। और इन्होंने, जट साहब ने उसको मेरे ज़राए के मुताबिक उसको कंफर्म भी किया, करवाया भी, चेक भी किया, काउंटर चेक भी किया, लेकिन उन्हें यही खबर मिली कि जनाब शायद आइंदा आने वाले इलेक्शंस में जट साहब को मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं मिलेगा। सो जट साहब ने भी अलहदगी इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा जी अच्छा पॉलिटिकल स्टेप होगा कि मैं इसी वक्त ही साइडलाइन हो जाऊँ ताकि कल मैं कह सकूं जनाब कि मैंने हमीदुद्दीन सियालवी साहब को इस्तीफ़ा पेश कर दिया था, बाद में तो टिकट वैसे भी नहीं मिलना, तो चलो इतनी जान छुड़ा लो। खैर एनीवेज, ये चीज़ें आपके सामने रखनी इसलिए ज़रूरी थी कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स जो है वो डे टू डे पॉलिटिक्स है, वो चलती है, और उसके साथ साथ जैसे जैसे वक्त बदलता है उसी तरह लोग भी अपना रंग बदल देते हैं। लेकिन बीबी जो है, बीबी का साथ इतना अच्छा लगाव था और इतना अच्छा क्लोजनेस थी कि शहबाज शरीफ साहब को अगर दावत मिलती थी बीबी भरवाना की तरफ से कि जनाब आप मेरे पास नाश्ता करें आके, तो शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन वक्त निकाल के वहाँ पे पहुँच भी जाते थे। हेलीकॉप्टर पे जाना पड़े उस पे चले जाते थे और जाके बीबी भरवाना के घर में जाके सुबह नाश्ता भी करते थे। लेकिन देन अगेन आपके सामने जी इस्तीफ़े दे दिए गए हैं, और इस्तीफ़ों के बाद अभी उसकी मंजूरी होती है या नहीं होती, एक सवालिया निशान है। जैसे मैं पहले आपको बोला कि उसके बारे में मैं आज ज़रूर जिक्र करूँगा और आपको उसकी डिटेल ज़रूर देता रहूँगा। लेकिन व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि 1.5 अरब रुपये अभी थोड़ा अर्सा पहले आपने लिया है, कुछ हफ्ते पहले बीबी, और बीबी को जनाब फिर वहाँ पे 5 मरतबा जाके महीने में मिलती भी नहीं बीबी नवाज शरीफ साहब से। फिर उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब से, और शहबाज शरीफ साहब को जब भी उन्होंने कहा कि जनाब आप मेरे पास आके नाश्ता करें, तो शहबाज शरीफ साहब अगर वक्त निकालते थे और बाय रोड तो नहीं, अगर जा सके तो हेलीकॉप्टर लेके चले जाते थे कि वक्त बच जाए और फ़ौरन बीबी भरवाना की इज़्ज़त रखी जाए और उनका जनाब उनके पास रखा जाए और फ़ौरन नाश्ता करने भी पहुंच जाया करते थे। लेकिन सियालवी साहब के कहने पे बीबी ने ना लेफ़्ट देखा ना राइट देखा और फ़ौरन साइड लाइन हो गई। आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, ये ज़रा गौर तलब बात है, क्योंकि मैं चाहता ये हूँ कि पंजाब की गवर्नमेंट और नून लीग की गवर्नमेंट मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए ये एक बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम्पल है, और इस एग्ज़ाम्पल को मद्देनज़र रखें, क्योंकि लगता ऐसे है कि उनके साथ जिन लोगों को मियां शहबाज शरीफ साहब इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनके हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके लिए आउट ऑफ द वे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या वो लोग उनके साथ खड़े भी हैं या नहीं खड़े, या दिल से भी खड़े हैं या नहीं खड़े। सो थोड़ा सा मियां शहबाज शरीफ साहब को ये रियलाइजेशन करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि जनाब वो लोग जो कहते हैं कि जनाब असी ताड़े हंसते हैं, क्या वाकई वो उनके लिए हैं या नहीं है। सो ये एक सवालिया निशान है जो कि मेरे ख्याल में रिव्यू करना पड़ेगी स्ट्रेटजी मियां शहबाज शरीफ साहब को। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और आके आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा गुलभूषण के बारे में, और गुलभूषण के साथ क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, और किस तरीके से ये सब कुछ हुआ। आज आपने सुन तो लिया होगा सारा दिन, लेकिन कुछ चीज़ें नई आपके सामने रखना चाहूँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
कुलभूषण के बारे में आपने आज सारा दिन खबरें सुनी जनाब, और उनकी वालदा और उसकी बीवी जो है उसने आके मुलाकात भी की आज। इसके बारे में ये क्या, व्हाट वाज दिस जेस्चर ऑल अबाउट? एक चीज़ तो फॉरेन ऑफिस बिल्कुल क्लियरली बता चुकी है कि जनाब ये कोई आखिरी मुलाकात नहीं थी। अब एक ऐसा रॉ का एजेंट जिसको रंगे हाथों पकड़ा गया हो, जिसने कमिटमेंट भी की हो कि हाँ जी मैंने यहाँ पे दहशतगर्दी की, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की या दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहा और बड़े बड़े केसेस में इन्वॉल्व रहा, इस वक्त इस सिचुएशन में पाकिस्तान का ये जेस्चर कैसे लिया जा सकता है, वन इंटरनेशनली, और दूसरा क्या इसका हमें इसी किस्म का जवाब इंडिया की तरफ से मिलेगा या नहीं? जी मेरे साथ मौजूद है जनरल नईम खालिद लोधी साहब और जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए जी। नईम साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोधी साहब हाउ डू यू टेक इट? जी बहुत शुक्रिया। मैं तो सिर्फ हैरत ज़दा हूँ, और उसकी वजह यह है कि जहाँ तक मेरी समझ है, नाक़िस समझ है, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और उसमें ये जो इंसानी हमदर्दी और आला ज़रफ़ी, इसकी कोई ऐसी गुंजाइश मुझे मालूम नहीं है। ये तो मुआहदे होते हैं, इंटरनेशनल मुआहदे होते हैं, अगर आपका आपस में मुआहदा हो तो उसके मुताबिक काम किया जाता है। और फिर ये कि कैसे मुल्क के साथ जिसने हर कदम पर किसी आला ज़रफ़ी का वो नहीं किया, मुज़ाहरा नहीं किया, तो मुझे तो समझ नहीं है इस बात की सारा मामला क्या। और आपको ये भी शायद मालूम हो कि जो ही उनके जहाज ने टेक ऑफ किया इस्लामाबाद से, तो LOC के ऊपर फायरिंग करके हिंदुस्तानी फौज ने हमारे 3 जवान शहीद कर दिए। इससे पहले पिछले 25 दिन से लगातार ये हो रहा है कि हर रोज तकरीबन या हर दूसरे रोज एक दो सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो शहीद किए जा रहे हैं। जैसे कश्मीर में यासीन मलिक साहब की आपको पता है, ये इधर है इस कश्मीर में, मिशाल साहिबा, वो अक्सर दराज से मुलाकात करना चाह रही हैं अपने असीर मियाँ से, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का हूँ ये जो फैसला किया है किसने किया है, और ये जो फॉरेन ऑफिस ने इस्लाम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। हमारे मजहब में ये है कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस में और आजकल के दौर में आपको टिट फॉर टैट और उसके मुताबिक चलते हैं। और मुझे यकीन है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये अंडर सम प्रेशर है। और ये प्रेशर किधर से आया है, कैसे आया है, क्यों माना गया है, ये हमें कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अच्छा। और ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ जो कुछ हुआ है। ओके, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, लोधी साहब तो कहते हैं जी अंडर प्रेशर ये सारा कुछ हुआ, ये जो मुलाकात कराएगी अंडर प्रेशर कराएगी, जनरल लोधी कह रहे हैं ये। डू यू थिंक कि ये अंडर प्रेशर करवाई गई सारी मुलाकात, और प्रेशर था तो किसका प्रेशर था और क्यों ये प्रेशर लिया गया? जी बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल में मोइनुद्दीन हैदर साहब की दोबारा मिला रहे हैं जी उनको। आपके ख्याल में लोधी साहब क्या प्रेशर क्या हो सकता है, वो क्या प्रेशर हो सकता है और क्यों इस प्रेशर को नहीं लिया गया, इसको संभाला क्यों नहीं गया? और इस स्टेज पे जब यहाँ पे जहाज़ उतरता है, उसकी कुलभूषण की वालदा और उसकी बीवी यहाँ पे उतरती है और 3 हमारे लोगों को शहीद कर दिया जाता है बॉर्डर पे, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? जी खैर मैं अभी वो कोई स्पेकुलेट नहीं करूंगा कि प्रेशर किस किस्म का हो सकता है। आपको पता है कि इस वक्त हमारा जो सबसे संगीन मामला है वो मईशत का है, और मईशत को डॉलर की जरूरत है, और डॉलर की खुशबू आपने देखा होगा कि $700 मिलियन का हमें झांसा दिया जा रहा है कि जी वो जो कोलिशन सपोर्ट फंड के डॉलर्स हैं वो बस हम दिए ही चाहते हैं आपको, बस आने ही वाले हैं बस। तो ये एक प्रेशर हो सकता है, ये मेरा अंदाजा है, गलत हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए ना कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा होता नहीं है, और खासकर हिंदुस्तान के साथ जो जिस तरीके के हमारे ताल्लुक, आप शुरू से देख लें, आपने साड़ियाँ भेजी, आपने आम भेजे, आपने उनको बगैर वीजों के इधर बुलाया, तो क्या हुआ जब सार्क की यहाँ कॉन्फ्रेंस होनी, किसने स्कटल की? जब सरताज अजीज साहब हार्ट ऑफ
एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए गए, किसने बेइज्जत किया? जब हमारे फनकार जाते हैं कौन उनको निकाल देता है? जब बच्चे जाते हैं सैर करने के लिए उनकी कौन उनको कहता है कि आप वापस जाइए? तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये बड़ा गुडविल है। ये वन वे गुडविल मेरी समझ से बालत है। मोइनुद्दीन हैदर साहब, ये अंडर प्रेशर ये कोई काम किया गया? कि लोधी साहब कहते हैं जी कि कोई प्रेशर है जो माउंट किया गया पाकिस्तान पे, और जिसके नतीजे में गुलभूषण की वालदा को और उसकी बीवी के मुलाकात कराएगी, और ये प्रेशर जो है शायद इसलिए कि हमारी इकॉनमी जो है या हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है इस वक्त कोई इतनी अच्छी नहीं है। डू यू एग्री विद दिस वन जी? मेरे ख्याल में उनकी लाइन में दोबारा प्रॉब्लम है जी, मोइनुद्दीन हैदर साहब की। मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगा लोधी साहब। डू यू थिंक कि इसी तरह अगर चलता रहा, इसी तरह मतलब कि जहाज़ लैंड होता है और 3 हमारे जवान शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे, और इसी तरह जनाब प्रेशर अगर इसी तरह माउंट होता रहा, तो कल डू यू थिंक कि गुलभूषण कैन वॉक आउट फ्री? मुझे ये तो खैर नहीं मालूम कि वेदर ही कैन वॉक आउट फ्री। मेरा ख्याल है उसके लिए तो वक्त दरकार होगा, लेकिन इस चीज का मुझे बड़ा शदीद खदशा है कि प्रॉब्ली उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि हमारा इंटरनेशनल कोर्ट में जाना जो कि फर्ज नहीं था हमारे ऊपर, उधर हम गए हैं, जवाबदेही हमने उधर की है जिसके जो हमारे ऊपर फिर दोबारा लागू नहीं थी, क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉ है वो मेरा ख्याल जो आपका लोकल लॉ होता है उसको सुपरसीड नहीं कर सकता। कोई ऐसा मेरी नज़र में मुआहदा मौजूद नहीं है हिंदुस्तान के साथ जिसमें हम मजबूर होते कि हम ये मराहत उनको देते। कोई मुझे ऐसा वाकया याद नहीं है जिसमें हमारे अगर उन्होंने कोई जासूस पकड़े हो तो हमारे लोगों को उन्होंने कोई इस किस्म की मराहत दी हो। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे खदशा है इस बात का कि शायद हम इस शख्स को जो करार वाकई जो सजा इसकी बनती है वो नहीं दे पाएंगे। मतलब करार वाकई से आपकी मुराद ये है लोधी साहब के सजाए मौत ना दी जाए इसको और लाइफ सेंटेंस में तब्दील कर दिया जाए? क्या ऐसा मुमकिन है? इसके इम्कानात काफी हैं, और फिर कुछ सालों के बाद हो सकता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आपको पता है वो तो आपस में जब आप तबादला करते हैं कैदियों का तो वो बात हो जाती है। अब इसमें एक और बात का इम्कान है जिसकी की मालूमात नहीं है मेरे पास, कि शायद उनके पास हमारा कोई हाई प्रोफाइल ऐसा बंदा मौजूद हो जिसके इन्होंने ये इस किस्म की बातचीत की हो, तो उसका फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी समझ से बालातर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने कोई जानबूझकर ऐसी बात की है। हो सकता है हुकूमत की मजबूरी हो, मैंने तो एक मजबूरी का जिक्र किया है, हो सकता है उनकी और मजबूरियां भी हों जिनका आपको मुझे इल्म ना हो। अच्छा, मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगा, आप ज़रा बेहतर तरीके से समझा देंगे। क्या ये आप उस चीज़ को रेफ़र तो नहीं कर रहे कि जनाब हमारा भी कोई इसी किस्म की कोई सिचुएशन बनी हो जो अभी तक सामने नहीं आई? क्या आप रेफ़र वो कर्नल को तो नहीं कर रहे? कर्नल साहब थे जो चले गए थे और उनको घेर घार के लेके चले गए। उसका इम्कान मौजूद है। अच्छा, इम्कान मौजूद है क्योंकि वो नेपाल से गायब हुआ है कर्नल, और वो कोई सर्विंग कर्नल नहीं था और किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में सर्व नहीं कर रहा था। लेकिन हो सकता है कि अपने रिटायर्ड ऑफिसर को बचाने के लिए उनके हाजिर ऑफिसर का इस किस्म की सौदेबाजी कर लें, कोई थोड़ी नरमी दिखाएं। ये मेरा अंदाजा है, क्योंकि मालूमात नहीं है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जनरली जो है जो इतने हाई प्रोफाइल, क्योंकि ये तो कोई आम जासूस तो नहीं है ना, ये तो सरगना था ना एक पूरे नेटवर्क का, और इसने बेइंतहा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, उसने खुद कहा है, मतलब कोई मुझे दोहराने की जरूरत ही नहीं है। तो और ये भी आपको पता है कि जो सुषमा स्वराज हैं उन्होंने कहा था कि हम अपने आदमी को बचाने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। ये कोई छोटा जुमला नहीं है, ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है कि हम बचाने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है जो उन्होंने बात की थी। तो वो फिर मेरा ख्याल है कि तमाम हदों तक जा रहे हैं, और वो उसके असरात हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना क्या जरूरी था, और अगर हम गए भी तो क्या वजूहत थी? उस वक्त भी कोई प्रेशर था या नहीं था? जलसा में एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद जरा इसका भी जवाब चाहूंगा आपसे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
जनरल नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और गुलभूषण के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हो सकता है कि जनाब इसको गुलभूषण को जो सज़ा दी जानी चाहिए, सज़ाए मौत जो दी जानी चाहिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद वो ना दी जा सके और सज़ाए मौत से गुलभूषण बच जाए, और उसकी वजूहात भी उन्होंने बयान की। जनरल साहब एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की अगर ज़रूरत नहीं थी या कोई बाइंडिंग नहीं थी हमारे पर, तो फिर क्या वजूहात थी? वो भी कोई प्रेशर था जिसकी वजह से हम लोग गए और ताकि केस वीक हो जाए? और अगर था ऐसा तो वो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। देखिए, मैं लॉ का तो माहिर नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में मैं इतना जानता हूँ कि जो नेशनल लॉज होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, और अगर कोई इंटरनेशनल लॉ ऐसा हो जो आपके नेशनल लॉ के मुताबिक ना हो, तो फिर आपके पास चॉइस होती है कि आप जाना चाहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में कि नहीं जाना चाहते। अगर आप ना माने वहां जाने के लिए, तो वन साइडेड प्रोसीडिंग वहां पर नहीं हो सकती। वहां पर जरूरी है कि दोनों साइडें रजामंद हो, तब वो उसकी प्रोसीडिंग चलती हैं। तो मेरे अपने ख्याल में कोई वैसे लॉयर ही इसकी तायद कर सकेगा कि हम अगर ना जाते तो हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि हम उधर जरूर जाएं। हम कह सकते थे कि जी ये एक हमारा इंटरनल मामला है, बड़ा हाई प्रोफाइल, हमने सैबोटियर पकड़ा है, नॉट मतलब जासूस नहीं बल्कि सैबोटियर पकड़ा है, और वो हम जो दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे हैं उसके मुताबिक हम डील करेंगे और अपने मुल्क के कानून के मुताबिक डील करेंगे। तो मेरा ख्याल कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता था वहां जाने के लिए। तो अगर फिर ये सब चीज़ें जो हमें देख रहे हैं, जिस तरीके से आप सारी चीज़ें अनफोल्ड कर रहे हैं कि प्रेशर है, डेफिनेटली है, या ये प्रेशर है कि हमारा भी कोई इस किस्म का कोई शख्स जिस पे नेपाल में जैसे कर्नल रिटायर्ड पकड़ा गया था, उसको बचाने के लिए शायद ये सब कुछ एक्सरसाइज की जा रही हो। सो इज़ दैट रिटायर्ड कर्नल सो इम्पॉर्टेंट? और अगर कंपैरिजन किया जाए तो रिटायर्ड कर्नल जो नेपाल से लियोर इन करके उसको लेके चले गए थे रॉ, वो अगर देखा जाए तो वो तो किसी इंटेलिजेंस आउटफिट का, जैसे आपने भी कहा, किसी इंटेलिजेंस आउटफिट में नहीं था, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस आउटफिट में नहीं था, ना पहले सर्विंग था तो उस वक्त भी नहीं था, और वो रिटायर्ड एक कर्नल था। सो उसका कंपैरिजन इसके साथ, गुलभूषण के साथ किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे कमिटमेंट, यहाँ पे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दे चुका है कि जनाब उसने यहाँ पे कितने बंदे मारे, कितने जनाब यहाँ पे पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग मारे, सिविलियंस मारे, और किस किस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। सो कैन वी मेक अ कंपैरिजन ऑफ दैट कर्नल, पाकिस्तानी कर्नल जो नेपाल से लियोर इन करके रॉ वाले लेके चले गए उसको, या इसके साथ कोई कंपैरिजन बनता है उसका जी गुलभूषण के साथ? नहीं, कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी तो खैर उनकी हकीकत का हमें पता भी नहीं है कि वाकई वो ले गए या नहीं ले गए। ये तो किराए नहीं बताते हैं कि शायद ऐसा है, लेकिन ये है कि इंसानी जान जो है, एक पाकिस्तानी अगर कहीं भी मौजूद हो, सिविलियन हो, फौजी हो, अगर उसकी जान बचाने के लिए कुछ किया जा सकता है तो मेरे ख्याल हमेशा ये करते हैं। और ये एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, एक्सचेंज ऑफ इस किस्म के जो है लोग, इनका चलता रहता है, लेकिन अंडर हैंड होता है। इतना ऐसे शीशे की तरह वाजे और इतना सामने नहीं होता। तो वो जो जिस हैरत का मैं इजहार कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि ये तो बहुत सामने नजर आ रहा है, ये तो क्रिस्टल क्लियर है। इसमें कोई ऐसी बात जो छुपाई जानी चाहिए थी छुप नहीं पा रही। मैं तो इस नजरिए से बात कर रहा हूँ कि कौमों के दरमियान बातचीत होती है, चेंजेस होते हैं, मुआहदे होते हैं, लेकिन इतना जो नजर आए कि वन साइडेड गुडविल, एक तरफ से ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन और बिल्कुल उसका उलट, और बार बार ये भी नहीं कि एक दफा, तो इसकी ये मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें कुछ थोड़ा सा दाल में काला है। सो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द आउटकम? एक तो आपने क्लियरली बता दिया जी कि हो सकता है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है पाकिस्तान की, कोई प्रेशर माउंट किया गया हो। सेकेंडली आप ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जनाब सज़ाए मौत ना हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको सज़ाए मौत में तब्दील कर दिया जाए, गुलभूषण की सज़ा जो है, एंड थिंग्स लाइक दैट। व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ इट जी? व्हाट विल वी गेट आउट ऑफ इट? जस्ट
just हाँ जी, money, वो just bucks, that's what we are talking about over here, या कुछ और? देखिए, एक और चीज जिसका मुझे थोड़ा सा अंदाजा है, वो ये है कि जब भी आप कोई काम अंडर प्रेशर करते हैं तो जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो कभी नहीं होता। प्रेशर हमेशा माउंट होता है, प्रेशर हमेशा बढ़ता है, और जब भी आप अंडर प्रेशर काम करेंगे आपके ऊपर मजीद प्रेशर डाला जाएगा। जब आप प्रेशर के शैकल्स को तोड़ते हैं तब जाके इम्कानात पैदा होते हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल ये है कि अगर पहली बात तो ये कि ये मैं सारी थ्योरी पेश कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि ये बात दुरुस्त हो कि ये सारा काम अंडर प्रेशर हो रहा है, तो मेरा अपना नजरिया है, मेरा अपना तजजिया है। नहीं, आप सेक्रेटरी डिफेंस रह चुके हैं, you had been serving in the army as a general। हाँ जी, मैं तजजिया पेश कर रहा हूँ ना अपना। तो अगर किसी का ये ख्याल है कि एक प्रेशर बर्दाश्त करने के बाद जब हम कोई बात मान लेंगे तो उसके बड़े अच्छे नताइज मुरतब होंगे, तो दिस इज अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। और मेरा तजर्बा कहता है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि जब आप एक प्रेशर के तहत एक बात मान लेंगे तो दूसरा प्रेशर उससे भी बड़ा आएगा और आपको दो बातें माननी पड़ेंगी, और जब तक आप रुकेंगे नहीं ये रोल करना शुरू हो जाएगा बॉल, और आपको समझ नहीं आएगी कि आप कहाँ पे रुके, और हो सकता है एक ऐसा टाइम आ जाए कि आप रुक भी ना पाए। अच्छा, एक चीज जो थोड़ा सा इससे हट के मैं एक चीज आपसे मैं बात करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, मुझे मुख्तसर सा अगर आप जवाब दे दीजिए। देखिए, निकी हेली ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी जनरल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ वोट दिया, और इसराइल की बात कर रहा हूँ, इसराइल में जो कैपिटल उन्होंने शिफ्ट करना था जेरूसलम में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और हमारे पास आ जाते हैं, अमेरिका के पास आ जाते हैं ये सारे लोग, और आके कहते हैं जी अपना वेट थ्रो करो, प्रेशर माउंट करो, और हम उन लोगों को हेल्प भी करते हैं, फाइनेंशली भी हेल्प करते हैं। लेकिन आज जो है जनरल असेंबली में निकी ने बोला कि उन्हें डिसरिस्पेक्ट की गई, अमेरिका को डिसरिस्पेक्ट लगी, ये शो किया कुछ ममालिक ने, बल्कि मेजॉरिटी ममालिक ने, और जेरूसलम के बारे में उन्होंने अपना स्टैंड लिया कि जनाब वहाँ पे कैपिटल इसराइल नहीं बना सकता। माई पॉइंट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। हम लोग जो है वो देखते हैं सब कुछ सऊदी अरेबिया की तरफ, कोशिश हम लोग करते हैं कि सऊदी अरेबिया की तरफ जो भी है, जैसे सऊदी अरेबिया कर रहा है उसको 100% ना सही तो एटलीस्ट 70% उसको फॉलो किया जाए। सऊदी अरेबिया ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो तो इसराइल के साथ शुरू कर दिए, और वहाँ पे एम्बेसी भी खोल दी उन्होंने, उनके डिप्लोमेटिक टाइज भी हैं उनके साथ। सो हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? हम लोग शुड वी स्टार्ट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड? और इसको ज़रा कंपैरिजन, इस प्रेशर को भी देखिएगा, जो भी प्रेशर है, गुलभूषण को भी साथ मद्देनज़र रखिएगा। तो हम भी क्या अपनी स्ट्रेटजी चेंज ना करें? हमें भी हर एक के साथ लड़ने झगड़ने की क्या ज़रूरत है? हम इसराइल के साथ एटलीस्ट इसराइल के साथ एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट क्यों नहीं रख सकते? कोवर्ट रिलेशंस तो हमारे कोल्ड वॉर एरा में रहे ही हैं। हाँ जी, पहले आपने कहा कि वो जो उन्होंने थ्रेट किया कि जी हम देख रहे हैं कि कौन से लोग हमारे खिलाफ वोट कर रहे हैं, वो उसमें पाकिस्तान की तरफ इशारा नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान बहुत नीचे उस सीढ़ी में आता है। वो यूरोपियन मुल्क जो है उनकी तरफ इशारा कर रही होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका इतना गहरा मुआहदा है हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान ने भी उनकी मुखालफत की, आपको पता होगा कि इस सिलसिले में, तो वो तो एक अलग बात है। जहाँ तक ये सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, इसराइल, ईरान, इसमें बिल्कुल हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारी डिप्लोमेसी का ये एक कार्डिनल पॉइंट होना चाहिए कि हम दुश्मनियां कम करें और दोस्तियां बढ़ाएं। लेकिन आपको एक कुछ चीजों का पता होना चाहिए, और मेरा ख्याल हमारे जो अवाम है अक्सरियत उनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि कुछ मुल्क जिस बुनियाद पर कायम होते हैं और जो अपना एक वो खास एक नजरिया रखते हैं, उनमें बाज़ औक़ात ऐसे मराहिल होते हैं कि जहाँ पर शायद उनकी हमआहंगी का इम्कान नहीं होता। और वैसे तो प्रिंसिपली आई एग्री विद यू कि हमें देखें, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? हिंदुस्तान है। क्या उनके साथ हमारे सफारती ताल्लुकात नहीं है? बिल्कुल है। तो सफारती ताल्लुकात एस्टेब्लिश करने में कोई हर्ज नहीं है, स्पेशली अगर इतने काफी जो तुर्की के आपको पता है हमारा इतना करीबी दोस्त है, सऊदी अरेबिया ने भी अभी तकरीबन ये कर ही लिया है, वो है। तो सफारती ताल्लुकात कायम करने में तो कोई हर्ज नहीं है। जो पॉलिसी है
वो एक अलग चीज है। बिल्कुल ठीक है, कई मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात हैं जी सिफारती इजराइल के साथ। हाँ जी, मैं तो आपको एक सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ ना कि आपका सबसे नंबर 1 एनिमी जो है उसके साथ आपके सिफारती ताल्लुकात हैं, तो उस पे क्या यहाँ देखा जाए तो कई बिजनेसमैन जो है पाकिस्तान से जाते हैं हर माह, कई 100 बिजनेसमैन इजराइल जाते हैं, ट्रैवल वो करते हैं। एक अलग बात है, पॉलिसीज अलग तरीके से चलती हैं और सफारती ताल्लुकात जहाँ भी हो हमें उसका करना चाहिए और हमें एक बैलेंस जो है ना रखना है इस तरीके से कि हम अपने पड़ोसियों के साथ। यू आर इन फेवर ऑफ दिस थिंग कि एटलीस्ट इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात होने चाहिए? हाँ जी, फेवर में कहूँ या ना को, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। यू आर नॉट अगेंस्ट दिस थिंग, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का लोधी साहब। जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और कह रहे बड़े क्लियरली उन्होंने मेंशन किया कि उनको ये गुलभूषण की जो वालदा और उसकी बीवी की जो मुलाकात है उसमें ऐसे लगता है कि कोई प्रेशर था और बड़ा कुछ सीरियस प्रेशर था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अदरवाइज़ उनकी नज़र में, लोधी साहब की नज़र में दिस इज़ वेरी अनयूजुअल। और वो कहते हैं जनाब कि ही इज़ नॉट अगेंस्ट दिस थिंग कि इसराइल के साथ अगर डिप्लोमेटिक टाइज हो, देयर आर सो मेनी मुस्लिम कंट्रीज आउट देयर। और जनरल साहब कहते हैं कि उन मुस्लिम ममालिक के भी वहाँ पे ताल्लुकात है इसराइल के साथ, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो जो समझा जाता है वो इंडिया है, और उसके साथ भी हमारे सिफारती ताल्लुकात हैं। तो अगर इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हो तो ही इज़ नॉट अगेंस्ट इट। एनीवेज़ जी, फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।